Hello everyone, I'm Kuldeep Verma and today I'll be discussing one topic from permutation and combination, that is how to find rank of a word. So first I'll write the topic here, rank of a word. So what does it mean and which type of question will be asked? Suppose question will be one particular word will be given and they'll be asking if all the letters of this word are arranged in alphabetical order like dictionary, at what position this word will appear or what will be the rank of this word. Or question may be asked like what are the total number of words before this particular word. Suppose I'll take one example, say I want to know the rank of this word pen. So to solve this type of question, one thing you should know is arrangement, permutation. So what will be the total number of words can be formed from these three letters pen? That will be 3 factorial. I hope you know that. Okay, I'm assuming that you know little bit of permutation combination, then it will be easy to solve this type of question. Okay, so first I'll be listing down all the possible words from pen. So first alphabetically E will come first, then N, then P, and then E, P, then N. Again, starting with N, there will be N, E, P, then N, P, E, then P, E, N, and then P, N, E. So you can see that all the words are in alphabetical order. So first we fixed this, so 2 NP and PN can be arranged, so these are in 2 factorial types. Then if we fix N, there will be these two letters EP will be arranged, that will be also in 2 factorial type. And then so if we check, pen is coming at the 5th place, so rank of this word pen is 5th. Our question is how many total words will be appearing or how many words before pen will be 4, these 4 words. So if question is that simple, that's very easy, we can list down and we can find out. But question won't be like this, find the rank of sky, cry, or very small words. So question will be little bit lengthier, maybe repetition will be there, word letters will be repeated. So I'll take one example little bit, थोड़ा सा इससे बड़ा. मान लो कि अब हम मुझे जानना है पेंसिल का रैंक क्या होगा. पेंसिल में कितने वर्ड्स हैं यहाँ पे, तो कितने लेटर्स हैं, 6 लेटर्स हैं. अगर ये 6 लेटर्स को हम अरेंज किए अल्फ़ाबेटिकली, व्हाट विल बी द रैंक ऑफ पेंसिल और व्हाट विल बी द नंबर ऑफ वर्ड्स बिफोर पेंसिल. ओके, सो फर्स्ट व्हाट विल डू, विल सी व्हाट इज़ द ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. सो सबसे पहले आएगा सी, देन ई, देन आई, देन एल, देन एन, देन पी. मतलब मुझे जो पेंसिल चाहिए, सबसे पहले सी से स्टार्ट करने वाले कितने नंबर्स हों, कितने वर्ड्स होंगे सी से, उसके बाद 5 जो इधर बच गए ये पाँचों, उनको 5 फैक्टोरियल तरीके से हम लोग नंबर वर्ड्स फाइंड कर सकते हैं. फिर सी के बाद क्या होगा, ई होगा, फिर क्या होगा, आई होगा, फिर एल होगा, फिर एन होगा, तब जाके पी से स्टार्ट होगा. और पी से भी यहाँ बात ख़त्म नहीं होती, यहाँ से थोड़ी सी मंजिल करीब है हम लोग. ये जो पी से स्टार्ट होने वाली ये नंबर मिला है, तो ई से भी फिर वही 5 फैक्टोरियल तरह से हम लोग टोटल वर्ड्स जो ई से स्टार्ट होंगे. एंड देन आई से भी 5 फैक्टोरियल वर्ड्स होंगे, एल से भी 5 फैक्टोरियल वर्ड्स होंगे, एन से भी 5 फैक्टोरियल वर्ड्स होंगे. अब जैसे ही पी आता है तो पी के बाद हमें चाहिए ई, लेकिन यहाँ पे पी के बाद अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में क्या आएगा, सी आएगा, तो सी को लिखेंगे हम लोग. फिर पी और सी को फिक्स करने के बाद ये जो 4 लेटर्स बच गए हैं उसको 4 फैक्टोरियल तरीके से, तो ऐसे वर्ड्स जो पी सी से स्टार्ट हो और इतने 4 फैक्टोरियल होंगे. फिर सी के बाद यहाँ पे कौन सा आएगा वर्ड, लेटर आएगा पी ई. अब हम लोग थोड़ा और करीब आ गए, पी ई जो हमको चाहिए पी ई, लेकिन पी ए के बाद डायरेक्ट एन तो नहीं आएगा, पी ई के बाद अल्फ़ाबेटिकली सी आएगा. तो 3 अगर हम लेटर को फिक्स कर दिए तो 3 को 3 वेज में, 3 फैक्टोरियल में. फिर ये पी ई सी के बाद एन तो डायरेक्ट फिर नहीं आएगा, फिर आई आएगा, तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल. देन पी ई एल भी आएगा, फिर ये 3 फैक्टोरियल. एंड देन पी ई एल के बाद एन, मतलब जो हमको चाहिए. फिर एन के बाद सी अल्फ़ाबेटिकली, देन आई अल्फ़ाबेटिकली, देन एल अल्सो अल्फ़ाबेटिकली.
तो ये हो गया, इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे अगर हमको रैंक निकालना है तो। ये तो मेथड है। अगर आप लिस्ट डाउन जैसे यहाँ हम लोगों ने किया है, ये ऐसा करना चाहें तब तो मुश्किल ही नहीं, बहुत ही मुश्किल है। क्यों हो जाएगा मुश्किल? क्योंकि पेंसिल जो होगा टोटल 720 वर्ड्स हम लोग पेंसिल के लेटर से बना सकते हैं, सॉरी 720 वर्ड्स। तो 720 वर्ड्स को लिस्ट डाउन करना मुश्किल होगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग देख लिए कि सी से कितने बनेंगे, ई से कितने बनेंगे, ठीक है। तो इतने वर्ड्स होंगे पेंसिल के पहले, और रैंक के लिए ये +1 ऐड कर देंगे क्योंकि रैंक जानना है हमको। तो यहाँ पे सबको अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स 5 फैक्टोरियल है, एक बार आपका 4 फैक्टोरियल है, और 3 टाइम्स 3 फैक्टोरियल है, और +1 है। तो सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 624, 18 +1, तो टोटल 643 रैंक हो गया पेंसिल का, अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ट्रिक देखेंगे, ये भी थोड़ा लेंदी है। ये तो वैसे लिस्ट डाउन करना वेरी डिफिकल्ट, मतलब इम्पॉसिबल के बराबर, और ये मेथड भी थोड़ा सा है टाइम टेकिंग। तो इसके लिए एक ट्रिक है, ट्रिक कोई जादू होता नहीं, इसी को ऑब्जर्व किया जाता है, जो क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं हम लोग उसी को शॉर्ट वेज में खोजा जाता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा स्पेस दे के लिख लेंगे, PENCIL, और यहाँ पे सबको रैंकिंग देंगे, बोलेंगे कि जो सबसे पहले आएगा अल्फ़ाबेटिकल A to Z में उसको पहला रैंक देंगे, तो ये हो गया पहले आएगा, फिर C के बाद E आएगा, फिर I आएगा, फिर L आएगा, फिर N आएगा, फिर 6 ये P आएगा। तो ये नंबरिंग करने के बाद, रैंकिंग करने के बाद पहला काम क्या होगा, हम लोग देखेंगे कि इसके P के पहले कितने छोटे, P के पहले आने वाले कितने वर्ड, कितने लेटर्स हैं। तो E भी है, N भी है, मतलब रैंकिंग से पता चल जाएगा। वैसे तो फाइंड करना बहुत मुश्किल, हर बार सोचना पड़ेगा अच्छा P के पहले कौन सा आता है अल्फ़ाबेटिकल A to Z में। तो यहाँ पे रैंकिंग कर लिया, तो 6 से छोटा सारे है ये, 5 का 5, तो ये हो गया 5। 2 से छोटा कितने हैं, मात्र 1, तो ये हो गया 1। 5 से छोटा कितना नंबर है, तो ये तीनों है। 1 से छोटा है क्या कोई, नहीं है। 3 से छोटा कोई है क्या, नहीं है। 4 से छोटा तो कोई है ही नहीं, ठीक है। ये लिख लेंगे, ये ट्रिक का ये स्टेप्स है। उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, एंड देन 5 फैक्टोरियल। ये और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो है इनका प्रोडक्ट निकाल देंगे। तो प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 5 फैक्टोरियल प्लस 1 × 4 फैक्टोरियल प्लस 3 × 3 फैक्टोरियल प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। ये क्या होगा, इतने सारे नंबर्स वर्ड्स जो होंगे पेंसिल से पहले होंगे, इसका रैंक जानने के लिए हम लोग +1 देते हैं। तो वही देखिए सेम चीज़ है ना, 5 × 5 फैक्टोरियल, 1 × 4 फैक्टोरियल, 0 वाला है 2 वाला नहीं है, तो 3 × 3 हो गया। 0 वाला है यहाँ 2 फैक्टोरियल वाला, 1 फैक्टोरियल वाला और 0 फैक्टोरियल वाला, ठीक है। तो ये हो गया फिर से आपका 643। आई होप यू अंडरस्टूड। फिर से ये इतना टाइम लगा क्योंकि आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू। अगर सिर्फ आपको सॉल्व करना है तो क्या करना है, सिंपली हम एग्जाम्पल लेंगे और इसको सबसे पहले फिर से बजाते हैं। पेंसिल को थोड़ा सा स्पेस दे के लिखिए वर्ड्स को, सारे लेटर्स को, फिर रैंकिंग कर दीजिए जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर आते हैं। फिर रैंकिंग के आधार पर देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ जाइए, देखिए कि इसके बाद इधर कितने वर्ड्स हैं, कितने लेटर्स हैं जो उससे पहले आते हैं रैंकिंग से, तो 5। फिर इसके बाद ऐसे बढ़ते जाएंगे और यहाँ से 0 फैक्टोरियल से इधर बढ़ते जाएंगे, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, लाइक दिस, एंड देन इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और फाइनली ऐड करके ये 1 तब ऐड करेंगे जब रैंक पूछा। अगर क्वेश्चन ये रहता कि व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बिफोर पेंसिल, देन दिस विल बी द आंसर 642। आई होप यू अंडरस्टूड। तो हम लोग एक एग्जांपल लेंगे और जो हमको ट्रिक से करेंगे वो क्या है, टफ। सपोज इफ वी वांट टू फाइंड रैंक ऑफ दिस वर्ड टफ, जैसा कि हम लोग अभी पेंसिल का निकाले थे, तो क्या करेंगे भाई, फटाफट से GTOUGH करेंगे और देखेंगे रैंकिंग क्या है हमारा। G सबसे पहले आएगा, फिर H आएगा, फिर O आएगा, फिर ये T आएगा एंड देन U आएगा। तो रैंकिंग देखिए। अब 4 से छोटा कितने हैं, ये 3 है 4 से छोटा, तो ये 3 OGH 4 से छोटा है। फिर इससे छोटा कितना है 2, 5 से छोटा 2, 1 से छोटा नहीं, ये भी नहीं। तो यहाँ से शुरू कर दो, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और फिर मल्टीप्लाई भी कर दो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। तो क्या हो जाएगा, 3 × 4 फैक्टोरियल प्लस
2 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 0 प्लस 0 और +1 देंगे टू फाइंड रैंक, क्योंकि टफ से पहले इतने नंबर्स हैं, वर्ड्स हैं, टफ का रैंक के लिए एक ऐड करते हैं हम लोग, क्योंकि उसका पोजीशन जाना चाहते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 24 इंटू 3 72 और ये हो गया 12 और ये हो गया 4, सो 89 इज द रैंक ऑफ टफ इफ इट इज अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आई होप यू अंडरस्टूड। कितना लगेगा? मैक्सिमम 10 से 12 सेकेंड 15 सेकेंड लगेगा अगर हम ये ट्रिक से करेंगे तो। बात यहाँ तक ठीक थी, ये अगर रिपीट नहीं हो रहा था। अगर रिपीट होने लगे लेटर्स तब हम लोगों को प्रॉब्लम होती है, तब हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वर्ड लेंगे जिसमें रिपीटेशन होता है और वैसा वर्ड लेंगे जो बहुत अभी आजकल कॉमन चल रहा है, सबके जुबान पे वही है, कोरोना। तो एक हम लोग वर्ड ले रहे हैं कोरोना, ठीक है। और कोरोना का हम लोग रैंक जानना चाह रहे हैं कि इसका रैंक क्या होगा। यहाँ पे क्यों लिए कोरोना? क्योंकि 2 बार ओ रिपीट हुआ है, ठीक है। तो करेंगे क्या, हम लोग पहले मेथड से करेंगे, मेथड के बाद हम लोग फिर से उसको ट्रिक से करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले कोरोना में सबसे पहले ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर एन आएगा, फिर ओ आएगा, फिर ओ आएगा, फिर आर आएगा। मतलब ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिख लिए ताकि हमको थोड़ा आसान हो जाए सॉल्व करने में। तो सी से स्टार्ट होने वाला वर्ड है कोरोना, बट वी हैव टू राइट ए से वर्ड वाले सारे वर्ड। मतलब ए से अगर हम पहले पोजीशन में रख दें तो ये जो 5 डिजिट बच्चा, 5 लेटर जो बचे उनको अरेंज करेंगे कितने तरीके से, 5 फैक्टोरियल। बट ये जो ओ है वो 2 बार आएगा। तो ओ 2 बार आता है तो हम लोग जानते हैं अगर कोई नंबर, कोई लेटर रिपीट होता है, वी हैव टू डिवाइड बाई दैट नंबर ऑफ फैक्टोरियल, ठीक है। ए से इतने वर्ड स्टार्ट होंगे। ए के बाद अगला क्या होगा, सी। वही चाहिए हमको, सी से ही चाहिए, कोरोना आगे जाएगा। तो सी के बाद डायरेक्ट ओ तो आएगा नहीं, क्या आएगा, ए आएगा, ए आएगा। तो कितने बच गए, 4 फैक्टोरियल। फिर यहाँ पे 2 बार ओ इधर इधर कहीं पे आएगा जो आपस में रीअरेंज होंगे, तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ए के बाद सी, सी के बाद ए था, अब एन हो गया। यहाँ पे भी वही 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद एन के बाद क्या आएगा, वो होगा ओ। मतलब हम लोग ट्रैक पे आ रहे हैं धीरे धीरे। तो सी ओ हो गया। सी ओ के बाद डायरेक्ट आर लिखेंगे क्या, नहीं, फिर से ए के पास आएंगे। ये तीनों को फिक्स कर दे रहे हैं हम। क्या बचा यहाँ पे, 3 लेटर्स बच गए, ओ, आर और एन। तो उसको कितने तरीके से, 3 फैक्टोरियल। क्या यहाँ पे हम लोग 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ओ को हम लोग फिक्स कर चुके हैं, रिपीटेशन यहाँ नहीं रहा। इसको अलग हम लोग जो लिख रहे हैं, ये सब किसके लिए लिख रहे हैं, इन सब के लिए, इन सब के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड। और जहाँ पे ये समझ में ना आए वहाँ पे आप रोकिए, वीडियो को पॉज करिए, देखिए, फिर से समझिए एंड देन प्रोसीड, ओके। तो सी ओ ए तक हो गया। अब सी ओ के बाद क्या आएगा, एन आएगा। ये भी कितने तरीके से, 3 फैक्टोरियल के तरीके से। फिर सी ओ एक और आ गया हो तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 3 फैक्टोरियल के तरीके से। इतने वर्ड्स होंगे। अब सी हो गया, ओ हो गया, ओ के बाद अगला नंबर है आर का, तो सी ओ आर हो गया। आगे क्या होगा, कोरोना के करीब हम लोग, तो ए हो जाएगा यहाँ पे। तो कितने बचेंगे यहाँ पे, 2 प्लेस, तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। फिर यहाँ पे सी ओ आर एन भी हो जाएगा ए के बाद, तो फिर 2 तरीके से इसको कर सकते हैं। फिर सी ओ आर हो गया, एन के बाद ओ हो जाएगा। ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे क्या बचा, एक होगा ए एन और एक होगा सी ओ आर ओ एन ए, कोरोना। तो ये +1 और ये +1, तो ये रैंक हो गया। अब इन सबको जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 और इन दोनों को एक साथ 2। तो इन सबको अगर ऐड कर देंगे तो क्या आएगा हमारा, 60 और ये 24 और ये 24, 48। तो क्या हो गया, 108। तो 108 इज द रैंक ऑफ वर्ड कोरोना, ठीक है। मे बी इतना कोरोना चल रहा है, मे बी अगला मेंस में पूछ दे आपको कि कोरोना का रैंक क्या होगा, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। आई होप यू आर गेटिंग एवरीथिंग। जहाँ पे डाउट हो वहाँ पे वीडियो को पॉज करें, देखें अच्छे से, फिर समझें, ठीक है। तो ये था रिपीटेशन वाला मेथड से। अब हमको अगर ट्रिक से करना है तो उसके लिए ट्रिक के लिए क्या है, सेम है वो ट्रिक, देख सकते हैं वैसा ही सब कुछ किए हैं, बस यहाँ पे कुछ डिवाइड किए हैं, वो देखेंगे कि कहाँ पे डिवाइड किया है हम लोगों ने, ठीक है। तो ये हम लिख लेते हैं पहले इसको, CORONA
एन ए। रैंकिंग देंगे, रैंकिंग देते टाइम जो चीज़ रिपीट हुआ है उसको सेम रैंकिंग देंगे, नहीं तो बुरा लग जाएगा उसको। मान लो ओ को बोल दिए, इस ओ को 1 बोल दिए, इसको 2 बोल दिए, तो फिर बुरा लग जाएगा ना। तो बुरा ना लगे इसके लिए इसको 1 रैंकिंग देंगे, सी को दूसरा रैंकिंग देंगे, एन को तीसरा रैंकिंग देंगे, और ओ को 4 इसको भी देंगे और 4 इसको भी देंगे, और आर को 5 रैंकिंग देंगे। आई होप इट्स क्लियर ना। ध्यान रखना है जब हम लोग रैंकिंग देंगे तो जो रिपीटेड नंबर है, वर्ड है, लेटर है, उसको सेम रैंकिंग देंगे। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि 2 से पहले छोटा कोई है क्या? हाँ, एक है, ए है, तो यहाँ लिखेंगे 1। फिर 4 से छोटा कितने नंबर हैं? 3 और 1। तो 4 से छोटा मतलब छोटा होता है, 4 से छोटा 4 को नहीं ले लेना। ठीक है, तो ये हो गया 2, 3 एंड 1 के लिए। 5 से छोटा 3, 4 से छोटा 2, 3 से छोटा 1, 1 से छोटा 1 भी नहीं। आया समझ में? तो वही चीज़ करेंगे फिर से। फिर यहाँ 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। ध्यान यहाँ पे क्या देना है कि देखना है कि इस पहले सी के बाद में इधर राइट साइड में कितने नंबर रिपीट हुए हैं। तो एक ओ और एक ओ, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। फिर यहाँ पे आएंगे और बोलेंगे कि यहाँ इसको इंक्लूडिंग दिस कितने लेटर्स रिपीट हुए हैं। तो ओ और ओ, तो ये हो गया, ये भी इसके लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिए। अब यहाँ से रिपीट हो रहा है क्या? नहीं, ओ है जरूर 2 बार, लेकिन इसके इधर तो नहीं है, तो यहाँ पे नहीं, रिपीटेशन नहीं है, तो 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो, नहीं लिखो तो अच्छा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर से बता रहा हूँ, रिपीटेशन के लिए क्या करो, सेम चीज़ सब कुछ जो था विदाउट रिपीटेशन। यहाँ पे अलग क्या होगा, चेक करना है कि किसी एक लेटर के राइट साइड में कितने नंबर लेटर रिपीट हुए हैं, जितने बार रिपीट हुए हैं उसको। मान लो एक और आर होता, जस्ट थोड़ा देर के लिए आर एक और होता, तो क्या बोलते हैं कि 2 ओ है उसके लिए 2 फैक्टोरियल, और 2 आर है उसके लिए भी 2 फैक्टोरियल। यहाँ से भी देखते हैं 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो हो सकता है रिपीटेशन एक से ज़्यादा नंबर हो, एक से ज़्यादा लेटर रिपीट हो रहे हों, और हो सकता है 3 बार 4 बार, हो सकता है कि यहाँ पे मान लो ओ रहता तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल कर देते। ठीक है, तो बहुत तरह के एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। अब रैंक निकालने के लिए क्या करिए, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, सबको मल्टीप्लाई कीजिए, +1 कर दीजिए, दैट विल बी द रैंक ऑफ कोरोना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 60, और ये क्या हो जाएगा 12, ये 24, ये हो जाएगा आपका 18, और ये हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा +1, और +1 फॉर रैंकिंग। ठीक है, तो ये सबको ऐड कर दीजिए, वही आएगा 108। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब तक जो बताया मैंने। ठीक, एक हम क्वेश्चन करेंगे जो ऑलरेडी पूछा गया है आपके IIT में। क्वेश्चन ये था कि हाउ मेनी वर्ड्स अपीयर्स, या फिर हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर बिफोर वर्ड कोचीन इफ अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया मैंने, समझ गया होगा आप लोगों ने कि हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर बिफोर वर्ड कोचीन, COCHIN, इफ अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, कितने ऐसे वर्ड्स होंगे जो कोचीन से पहले होंगे। तो ऑप्शन ऐसा है, मान लो 97, 196, 96, और डी है 48, मान लो ये है ऑप्शंस। ठीक है, तो हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर बिफोर वर्ड कोचिंग। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पहला चीज़ तो दिमाग में चमक गया कि भाई यहाँ पे रिपीटिशन है, 2 बार सी है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे COCHIN। हम ट्रिक से कर रहे हैं, आप चाहे तो मेथड से कर सकते हैं। तो सबसे पहले रैंकिंग का काम आता है, तो सबसे पहले रैंकिंग में कौन आएगा, रैंकिंग में सी आएगा पहले, तो सी को 1 रैंक देंगे, और सिर्फ एक नहीं, दोनों सी को एक एक रैंक दे देंगे। ठीक है, अगला नंबर जो है वो H होगा, फिर I होगा, फिर N होगा, 4th रैंक, और ये होगा 5। थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ इसको मैं, COCHIN। तो ये 1, और इसको भी 1, ताकि कोई भेदभाव ना हो, ये 2, ये 3, ये 4, एंड दिस इज़ 5। तो रैंकिंग कर लिया। आप देखेंगे कि सी के पहले इधर कितने वर्ड्स हैं, वो कितने लेटर्स हैं, इससे छोटा है, तो एक भी छोटा नहीं है, क्योंकि सी खुद 1 रैंक पे है, तो 0। 5 से छोटा सारा का सारा 4,
1 से छोटा कितना, 1 से छोटा एक भी नहीं, 2 से छोटा एक भी नहीं, 3 से छोटा एक भी नहीं, 4 से छोटा एक भी नहीं, ठीक है। फिर यहाँ से 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड देन 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि रिपीटेशन है, हाँ है रिपीटेशन, तो इसको सी को रिपीट हो रहा है, इसके बाद तो सिर्फ सी ही रिपीट हो रहा है, और हम बोले थे इंक्लूड करना है, जिसको हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से देखना है इधर, तो सी को इंक्लूड करने के तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड कर देंगे। इसके बाद इधर कहीं रिपीटेशन है ही नहीं तो नॉर्मल है। अब करेंगे क्या, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 इंटू 60, इसके लिए 60 प्लस 4 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 एंड देन प्लस 1। याद रखिएगा ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑलवेज दे विल नॉट आस्क यू टू फाइंड द रैंक, दे मे आस्क, एंड यू कैन सी हियर दे हैव आस्क्ड कि कोचिन से पहले कितने वर्ड्स हैं, तो ये वर्ड 1 तभी ऐड करेंगे जब रैंक पूछेगा, तो यही हो गया आपका आंसर, इतने सारे नंबर्स। तो 4 इंटू 24 दैट इज 96 विल बी द रैंक, सॉरी विल बी द वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स जो कोचिन से पहले अपीयर होंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। जैसे देखो पहला ऑप्शन 97 है, तो बहुत सारे बच्चे 97 को क्लिक करेंगे इसको, मान लो ऑप्शन नहीं दिया था, वैसे देता फंसाने के लिए, तो 97 मारते, क्योंकि आपको आदत हो जाएगी। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ये सिर्फ देख के नहीं, अच्छा रैंक वाला बोला तो रैंक निकाल के चल गए, ठीक है। तो ये 96 हो गया रैंक ऑफ कोचिंग। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ना सिर्फ मेंस एडवांस में, जो भी इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं, एनडीए वगैरह सीडीएस वगैरह में भी पूछे जाते हैं कंपटीशन में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।